Good afternoon and a very warm welcome from me, Rotractor Mitali Bhosikar, the Community Service Director, and my entire club of Rotrac Club of Navi Mumbai Sunrise. We at Rotrac Club of Navi Mumbai Sunrise strongly believe in our motto Rise into Action, and we are back with our second episode of Kya Aap Waqif Ho, Hifazat Nannhe Sapnon Ki. Children are our future and their hearts are purer than 24 karat gold. There's a famous saying by Bell Kaufman that children are the true connoisseurs. What's precious to them has no price, just value. Hence, preservation of their innocence lies in the hands of us adults. Through this podcast, we focus upon creating awareness and providing legal direction to act in the best interests of children on topics such as child physical and sexual abuse and child labor. We are joined here today by Advocate Sagar Panghal, who is an advocate, a teacher, an author, and a model. But most importantly, he is a person with an incredible energy and a persona. He's a graduate of Symbiosis Law School, Pune. He is a PhD scholar. He's already made his mark as one of the youngest CLAT mentors, that is Common Law Admission Test in Delhi NCR, and he has helped more than 100 students in their endeavors to take up law as a career. He has also been selected for NIRF, which is the National Institute of Ranking Framework, a methodology invented by the Ministry of Human Resources and Development. He has also authored books for judicial services for both preliminary and mains. The recent name of his book is Blue Rose CLAT 2020. With that note, I hand over to you, Sagar. All right. Thank you so much, Mitali. Thank you so much. And thank you so much to Rotary Club for inviting me to express my views on child abuse. And सबसे पहली बात तो आपने जो इसका जो हेडिंग रखा है, that is हिफाजत नन्हे सपनों की, वो बहुत अच्छा लगा मेरे को, वो बहुत सही. ठीक है. तो मिताली, चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में तो देखो मेरा यही मानना है कि द थिंग इज़ इट इज़ दैट काइंड ऑफ थिंग विच इज़ इंक्रीजिंग इन इंडिया डे बाई डे. ठीक है. और ये एक ऐसा क्राइम है जिसके बारे में सबसे कम रिपोर्ट्स की जाती हैं पुलिस में या कहीं पे भी, लेकिन इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे. ठीक है. सबसे पहले तो okay, I will tell you that what is child abuse. Child abuse is, everyone knows, when a parent or caregiver, whether through action or failing to act, causes injury, death, emotional harm or risk of serious harm to a child. देखो चाइल्ड अब्यूज़ के ना कई डिफरेंट तरीके होते हैं, और चाइल्ड अब्यूज़ जो है डिफरेंट टाइप से किया जा सकता है. ठीक है. इट कैन बी डिफाइंड एज एनी एक्ट, फेलियर और नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल, एडल्ट और चाइल्ड, that leads to a severe threat to the life and development of child and results in prolonged physical and psychosocial impacts on his or her health and well-being. ठीक है. तो चाइल्ड अब्यूज़ का ये रहता है कि अगर सपोज गॉड फॉरबिड किसी का चाइल्डहुड में, किसी का बचपन में अगर कोई तो देखो उसमें क्या रहता है ना मिताली, अगर किसी बच्चे का बचपन में अगर गॉड फॉरबिड चाइल्ड अब्यूज़ हुआ हो इन एनी मैनर, वेदर कोई इमोशनल अब्यूज़ हुआ हो या सेक्शुअल अब्यूज़ या किसी भी टाइप का अगर कोई अब्यूज़ हुआ हो, तो वो चीज़ उस बच्चे के दिमाग में एक ऐसी छाप छोड़ जाती है, लेमन लैंग्वेज में बोलूँ, जो शायद उससे ज़िंदगी भर ना निकले. ठीक है. क्योंकि चलो उसके बारे में मैं आगे फर्दर आपको बताऊंगा. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देर आर 4 टाइप्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज़. फर्स्ट वन इज़ फिजिकल, सेकेंड वन इज़ सेक्शुअल, थर्ड वन इज़ इमोशनल एंड फोर्थ वन इज़ नेग्लेक्ट. अब इसमें जैसा द पिक्चर इज सेइंग 1 out of every 2 children in India is sexually abused, most never report it. मैंने वही बताया, क्योंकि ये एक ऐसा क्राइम है जो बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग है, बहुत ज़्यादा होता है एक्चुअल में, लेकिन उसकी पुलिस रिपोर्ट्स ये सब बहुत कम होती हैं. एंड देयर आर लॉट ऑफ NGOs विच आर वर्किंग टूवर्ड्स इट, जो अपना डोर टू डोर जाके काम करती हैं. इनफैक्ट आई ऑल्सो वर्कड इन सम ऑफ द NGOs लाइक नेम्ड एज मार्क, मल्टीपल एक्शन रिसर्च ग्रुप. मैंने भी उसमें काम किया है, और हमने भी जब हम उसमें काम कर रहे थे तो हमने देखा कि बहुत सारी जगहों पे इनफैक्ट ये चीज़ रिपोर्ट ही नहीं की जाती है. इसको पता नहीं सोशल टैबू मानते हैं या क्या करते हैं. इनफैक्ट जो मॉम डैड होते हैं वही इस चीज़ को दबाने की कोशिश करते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग. सबसे पहले तो अपन को उस चीज़ को ख़त्म करना है. ठीक है. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट इज फिजिकल चाइल्ड अब्यूज़. देखिए फिजिकल चाइल्ड अब्यूज़ जो है उसके डिफरेंट टर्म्स होते हैं, डिफरेंट मायने होते हैं, और डिफरेंट तरीक़ों से वो किया जा सकता है. It abuses primarily results in potential physical harm from a confrontation or an interaction which is within the control of the parent or person in a position or power of authority.
जो भी पोजीशन ऑफ पावर में होता है, जो भी अथॉरिटी में होता है, जनरली वो लोग चाइल्ड अब्यूज करते हैं। ठीक है, बच्चा तो यार छोटा बच्चा है, वो तो मतलब कच्ची कली है अगर ऐसे। द रिजल्टेंट इंजरीज आर कंसिडर्ड अब्यूज इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द इंटेंशन ऑफ द एक्शन वाज टू कॉज हर्ट। अब इसमें क्या है, चाइल्ड ये अपना फिजिकल अब्यूज जो है डिफरेंट टाइप से कैसे किया जाता है। जैसे एक्सेसिव पनिशमेंट अगर देना, कई बार क्या होता है, मॉम डैड जो है, मॉम डैड नहीं या फिर मतलब फर्स्ट कजन है, देखो होता है, मैं एक ग्राउंड लेवल आपको जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ। ठीक है, कई बार क्या होता है वो एक्सेसिव पनिशमेंट दे देते हैं। एक्सेसिव पनिशमेंट मतलब जैसे इसमें लिखा बोन फ्रैक्चर, आपकी बोन तक फ्रैक्चर हो जाए या आपको इतना ज़्यादा चोट लग जाए कि आप उससे हील करने में कम से कम आपको 1-2 महीने लग जाए, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ चाइल्ड अब्यूज। देखो अब क्या है, पिटाई सब लोग करते हैं अपने बच्चों की, ठीक है, हम भी अपने माँ बाप से पिटे हैं, है ना। और देखो लेकिन क्या होता है ना मिताली, पिटाई का एक तरीका और एक एक हद होती है, राइट। लेकिन हमने कई सारे ऐसे केसेस देखे हैं, जब व्हेन आई वाज वर्किंग इन द मार्ग एनजीओ, तब भी मैंने 1-2 केसेस ऐसे देखे थे जो रिमोट एरियाज में, बेसिकली हम विलेजेस साइड जाते थे, वहाँ पे क्या होता था ना, वहाँ पे बच्चों को इतने लेवल तक, 1-2 केसेस ऐसे थे कि बच्चों को इतने लेवल तक मार दिया था कि उसकी जो एल्बो थी, एल्बो बोन टूट गई थी। ठीक है, सो दैट इज सीवियर इन नेचर। उस चीज को हमको रोकना चाहिए, उस चीज में एक अवेयरनेस फैलानी चाहिए। अपेरेंटली उसका केस ऐसा था कि उसका जो फादर था, उस जो लड़के का जो फादर था, अपेरेंटली ही ड्रिंक्स अ लॉट, वो काफी ड्रिंक करता था। एंड अपेरेंटली उसने एक दिन रात को नशे में आके अपने बच्चे को मारा, और उसने इतना मारा कि उसकी एल्बो बोन टूट गई। ठीक है, तो ऐसे ऐसे केसेस भी हमको देखने को मिले हैं, विच शुड बी स्टॉप एट द वेरी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ओनली। सीवियरली हिटिंग अ चाइल्ड, अगेन सेम थिंग, बहुत ज़्यादा तरीके से मारना, वो सब। फोर्स वर्क कंडीशंस, बच्चा जो है, कई बार क्या होता है, फोर्सफुली बच्चों से काम किया करवाया जाता है। फोर्सफुली काम करना इन द सेंस घर के काम नहीं, ऑब्वियसली झाड़ू पोछा जैसे काम नहीं, है ना, वो तो अगर माँ बाप बोले तो करना भी पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन फोर्सफुली काम करने का तरीका मतलब बाहर जाके बोला जाता है कि यहाँ पे जाके काम करो, या फिर मतलब कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जाके ज़बरदस्ती काम करो, या फिर और भी कई सारे डिफरेंट तरीके के काम होते हैं जो कि उनको फोर्सफुली करने को बोला जाता है, जिनका उनमें ना तो उनका मन लगता और ना वो काम करना चाहते, राइट। नेक्स्ट वन इज बुलिंग। बुलिंग का जो है डिफरेंट वो होता है कि लाइक देखो, स्कूल में बुली करते हैं, स्कूल में जो बच्चे को उसके फ्रेंड्स बुली करते हैं, वो एक तरह से उसका फिजिकल चाइल्ड अब्यूज ही तो है। बुलिंग का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जैसे आपका मॉम डैड अगर आपको किसी चीज़ में बुली कर रहे हैं, वो एक डिफरेंट थिंग हो जाता है। वो कभी भी अगर वो सीवियर इन नेचर का है तो वो कहीं ना कहीं गलत है। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि अगर बच्चे जो है लेगो क्लासेस लेते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स वगैरह बनाते हैं और वो सब करते हैं, उस केस में अगर जब बच्चा लेगो क्लासेस में जा रहा है, तब उसके साथ अगर कोई चाइल्ड अब्यूज, फिजिकल अब्यूज़ करे, वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाती हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वन इज चाइल्ड इमोशनल अब्यूज़। जितना अब्यूज़ फिजिकली तरीके से चाइल्ड को किया जाता है सर्टेन केसेस में, उतना ही अब्यूज़ उसको मेंटली या इमोशनली तरीके से भी किया जाता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो क्वाइट प्रिवेलिंग इन इंडिया। लेकिन वही बात है, इसके बारे में आधे लोगों को तो पता ही नहीं होता, और जिनको पता होता है वो रिपोर्ट करते नहीं हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि मॉम डैड इस तरीके से हो जाते हैं कि वो अपने बच्चे को किस चीज़ों के अंडर वो जाने लग रहा है वो सब तक नहीं पता कर पाते, राइट। तो सबसे पहले बात है कि अपने बच्चों को जाने पहचाने, ठीक है, उनसे बात करें कि अच्छा व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। तो इसमें क्या रहता है कि इज ऑफन ऑब्जर्व्ड एज अ पैटर्न ऑफ द बिहेवियर दैट हैम्पर्स द चाइल्ड्स इमोशनल डेवलपमेंट। ऑब्वियसली जो अगर कोई इमोशनल अब्यूज होने लग रहा है, तो उसकी जो इमोशनल डेवलपमेंट है, जो बच्चे के साथ साथ धीरे धीरे वो बढ़ता है, तो वो बढ़ती रहती है, वो खत्म हो जाती है, वो नहीं रहती है। The lack of evidence in the case of child emotional abuse is considered as a major challenge to the existing child protection system. Emotional abuse is almost always present when the other forms of abuses are identified in a child. इसमें क्या होता है, आइसोलेशन और एक्सक्लूजन ऑफ ए चाइल्ड। आपने वो मूवी देखी होगी, रोनित रॉय की एक उड़ान नाम करके मूवी आई थी। उसमें बेसिकली वो क्या करता है, वो आइसोलेट ही तो कर देता है, एक्सक्लूजन ऑफ द चाइल्ड। उसको कुछ समझता ही नहीं है कि यार, अब जैसे तारे ज़मीन पर थी, स्टिग्मेटाइजिंग, अगर मैं स्टिग्मेटाइजिंग चाइल्ड की बात करूँ, तारे ज़मीन पर उसके फादर क्या बोलते हैं, क्या नाम था, दर्शिल सफारी नाम था उस लड़के का। हाँ, तो हाँ, दर्शिल सफारी को क्या बोलते हैं उसके डैड, कि तू तो डफर है, यू आर ए डफर, यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन लाइफ।
ठीक है। तो इस तरीके से उसको बार बार बोलना उसको क्या करता है, उसको इमोशनली बहुत वीक कर देता है। यस राइट, उसको इतना इमोशनली वीक कर देता है कि फिर मिताली उसमें कॉन्फिडेंस जो है ना, कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है। उसके बाद वो कुछ भी स्टेप करने से पहले सोचता है कि यार, उसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चलता रहता है, यार तू डफर है, क्योंकि उसके डैड ने उसको एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट ला के दे दिया कि भाई तू डफर है, और वो चीज़ उसके दिमाग में बैठ गई। अब अगर वो लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहेगा भी ना, तो इसके सबकॉन्शियस माइंड वाली चीज़ उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। ट्रू। और ये बच्चे में ऐसा होता है कि बच्चे में एक बार अगर ये चीज़ आ गई ना, तो ये ग्रेजुअली इंक्रीज होती रहती है, वो डिक्रीज नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी एक सबसे वन ऑफ द मेन फैक्टर है ऐसा कर। सो नेक्स्ट वन इज फेलियर टू प्रोवाइड अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट। अब घर पे अगर उसको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं मिला, ठीक है, कहते हैं ना, अगर बच्चे की परवरिश के लिए एक माँ बाप की बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। राइट, अगर सर्टेन रूरल एरियाज में केसेस मैंने खुद देखे हैं, जहाँ पे बहुत ही अगर डिस्टर्ब्ड फैमिली है, ठीक है, मियाँ बीवी की अगर नहीं बन रही है, तो उसका जो असर है ना बच्चे पे सबसे ज़्यादा पड़ता है। सबसे पहले वो वायलेंस सीखता है, और उसमें वही होता है कि जो सीखेगा। अब एक रफ्तार का एक गाना आया था, मंटो जो मूवी था, उसका एक सॉन्ग था, उसका एक लाइन था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द लाइन, तो आप वो देखना ज़रूर। उसमें काफ़ी अच्छे से बताया गया है कि अगर जो पिता जो करेगा या माँ जो करेगी, इस टाइप से जो भी घर में चल रहा है, अगर डिस्टर्ब फैमिली है, तो बच्चा बोलने से पहले ही सीख जाएगा कि तू मर्द जब बनेगा तब तू औरतें दबाएगा, इस टाइप से करके वो लाइन है। काफ़ी तो वो चीज़ें ट्रू हैं। बच्चा जो है, जो घर में देखता है, जो सब कुछ सीखता है, वही सीखता है। यस राइट, तो इन सब चीज़ों को हम पे फोकस करना चाहिए, इन सब चीज़ों को हम पे काम करना चाहिए उन पे, और मेक श्योर रखें कि घर का एनवायरनमेंट ऐसा बने ताकि जो बच्चे के अंदर एक इमोशनली जो वो है वो डेवलप हो सके। ऑलराइट, केयर गिवर्स नॉट रिस्पॉन्डिंग टू चाइल्ड्स इमोशनल नीड्स। केयर गिवर्स हैं या जो बच्चे का ख्याल रखते हैं, वो उनकी इमोशनल नीड्स को ध्यान में नहीं रखते। इमोशनल नीड्स हियर बाय आई एम नॉट रेफरिंग टू लाइक, अगर बच्चा मार्केट में गया है तो उसको पेप्सी चाहिए, उसको कुरकुरे चाहिए, और अगर हम नहीं दिला रहे तो रोड पे लेट रहा है, चिल्ला रहा है, नहीं मम्मा आई वांट इट, दैट इज डिफरेंट। वो उसकी जिद है, ठीक है, वो उसकी नीड्स नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये है कि इमोशनल नीड्स जो अगर बच्चे की होती हैं, अगर वो बोल रहा है कि मम्मा पापा मुझे टाइम दो, मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ, ठीक है, लोनली फील कर रहा हूँ, या फिर मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं हैं, या स्कूल में मेरे को बुली करते हैं, मेरे को ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उस चीज़ में बच्चे का साथ दो, वो उसकी इमोशनल नीड्स हैं। अगर उस टाइम पे भी आपने बच्चे का साथ नहीं दिया, तो ऑब्वियसली वो चीज़ उसको अंदर ही अंदर घर करके खा जाएगी। राइट, और वो फिर इंक्रीज होती रहेगी ग्रेजुअली, और फिर उसका मतलब क्या है ना, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसमें लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी लाइफ भर लैक करेगा वो बंदा। तो इन चीज़ों पे हमेशा साथ देना है। ब्लैकमेलिंग अ चाइल्ड भी काफ़ी टाइप्स के होते हैं। ब्लैकमेलिंग जैसे ब्लैकमेलिंग हेयर बाय नॉट रेफरिंग लाइक कि अगर मम्मा ने बोला कि बेटा दूध पी ले वरना भूत आ जाएगा, वरना हमारे यहाँ पे एक देसी लैंग्वेज में बोलते हैं कि हाउ आ जाएगा। ठीक है, दैट इज नॉट ब्लैकमेलिंग। ठीक है, ब्लैकमेलिंग अगर उसी चीज़ को मिताली अगर थोड़ा सा सीरियस इन नेचर लिया जाए, दैट अमाउंट्स टू ब्लैकमेलिंग। देखो शायद मिताली मेरी ये बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल बात हो सकती है, लेकिन मैं बोलूँगा ज़रूर। देखो, पिटाई का मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे को बिल्कुल नहीं मारना है। ठीक है यार, पिट के हम बड़े हुए हैं, पिट के अपनी जनरेशन ही पूरी पिट के बड़ी हुई है। ठीक है, इसका मतलब हमने ऐसा तो नहीं है ना कि कभी हमने मॉम डैड को सू कर दिया हो। या चाइल्ड एब्यूज, फिजिकल एब्यूज अलग चीज़ हो जाता है। मैंने आपको बताया बोन फ्रैक्चरिंग या उस लेवल तक जाना वो अलग चीज़ हो जाती है। या फिर थोड़े can I ask you like a question over here? Yes. कि if आपके पास अगर एक कोई केस आ रही है, तो कौन से लेवल पे आप डिस्टिंग्विश करते हो कि whether this is like पिटाई हो रही है या अब्यूज पे जा रहा है? At what level is there a distinction, clear distinction? Like let's say मिताली ऐसा है कि हमारे पास तो कि एक बच्चा की केस आई है कि अब्यूज़ हुआ है और लेट्स से पिटाई हुई है, बट पिटाई इन सच अ वे कि मार्क्स रह गए हैं बॉडी पे। सो इट इज़ नॉट एज एक्सट्रीम एज बोन फ्रैक्चर, बट देन देयर आर स्टिल मार्क्स ऑन द बॉडी। सो वुड यू से दैट इट इज़ बीन कि पिटाई हुई है या अब्यूज़ हुआ है? एट व्हाट लेवल, एट हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश?
हाँ, उसमें उसमें मिताली क्या होता है, सबसे पहले तो देखो, अगर ऐसा होता है हमारे पास तो केस बाद में आता है, पहले तो पुलिस एफआईआर या ये सब कुछ कर चुके होते हैं, पुलिस एक्शन ले चुकी होती है। हमको बेसिकली फिर हम है ना फोटोज़ का रेफर करते हैं, जब एट द टाइम ऑफ एफआईआर या उससे पहले एविडेंस के तौर पे क्या क्या फ़ोटोज़ थे, उसमें उसकी इंटेंसिटी क्या थी। अगर उसकी बोन फ्रैक्चर हुई है, कुछ हुआ है, तो उसमें उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाओ कि हाँ ये हमने इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल से उसका जो है ट्रीटमेंट करवाया था, इस टाइप से करके। तो हमें वो सब सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। और मिताली चाइल्ड एब्यूज़ और अगर घर पे एक नॉर्मल पिटाई हुई है, ठीक है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, और विच इज़ वेरी एविडेंट ऑन द फेस ऑफ इट, दिख जाता है, समझ में आ जाता है, ठीक है। तो हम फिर उसके हिसाब से हम केस को प्रोसीड करते हैं, राइट। ऑल राइट, देन कमिंग ऑन टू द थर्ड टाइप, दैट इज़ चाइल्ड सेक्शुअल एब्यूज़, जो कि अगेन इट्स वेरी प्रिवेलिंग, बट वही बात है, रिपोर्ट नहीं हो पाता है, अगेन सोशल टैबू माना जाता है। इनफैक्ट मिताली, अगेन अ कंट्रोवर्शियल थिंग आई एम सेइंग, कि एक ऐसा सोशल टैबू बन गया है कि जिसमें आज के दिन, देखो ट्रू है ये, उसमें आज के दिन क्या है, लोग क्या सोचते हैं कि यार अगर हम इसको बाहर रिपोर्ट करेंगे ना तो इसमें घर की बदनामी होगी। ये एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है यार, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा ऐसा लोग सोचते हैं, ठीक है। देयर माइट बी सम पीपल जो बोलेंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये कहाँ से, लेकिन मिताली ग्राउंड रूट लेवल पे तो ये I totally agree with you, yes. है ना। तो उसमें क्या होता है कि कई बार सोचते हैं कि यार हम बाहर जाएंगे बताएंगे, या फिर उसमें ये भी होता है कि पुलिस रिपोर्ट, अब उसमें ये भी आ जाता है कि हम पुलिस रिपोर्ट करें या ना करें, राइट। लेकिन कई बार ये भी हो जाता है कि जो एब्यूज़र होता है मिताली, वो फैमिली में ही होता है, ठीक है, फैमिली में ही एब्यूज़र होता है, लेकिन फिर उसके बाद सोचते हैं कि क्या हम इसको पुलिस में रिपोर्ट करें या ना करें, कई सारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं। देखो उसमें सबसे पहले पॉइंट तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि इट इज़ अ क्राइम, इट इज़ अ क्राइम, रिपोर्ट इट इन द पुलिस, बिल्कुल रिपोर्ट करना चाहिए। कोई बाईपास मेथड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई माफ़ी नहीं है, कोई गुनाह ही नहीं है, बिल्कुल। अगर बिल्कुल एट द वेरी सेम पॉइंट अगर आपको लगता है कि बच्चे का चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है सेक्सुअल तरीके से या कैसे भी तरीके से, बिल्कुल उसको सबसे पहले जाके पुलिस में रिपोर्ट कीजिए, ठीक है। किसी की मत मानिए, बीइंग द पेरेंट, आपका ये फर्ज बनता है कि आप अपने बच्चे के लिए स्टैंड लें, और जो भी कल्प्रिट है उसको पुलिस में आप रिपोर्ट करें, उसको जेल कराएं, ठीक है। फिर भी इन केस, मैं बिल्कुल एक्सेप्शनल केस ले रहा हूँ, वैसे ऐसे केसेस में कोई एक्सेप्शन नहीं बनती है मिताली, बट फिर भी स्टिल कि अगर आप पूछो तो कि क्या व्हाट इफ की पुलिस में रिपोर्ट ना कर पाए, तो उस केस में मिताली क्या रहता है, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, आप उसके खिलाफ घर में आवाज़ उठाएं, उसको लेट को तो मत कीजिए। और उसमें मिताली फिर ये भी देखा जाता है कि उसने जो एब्यूज़ किया वो किस इंटेंसिटी का था, ठीक है। अब यही होता है ना कि यार अब उसने सपोज देखो एब्यूज़ करने वाला था, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको रोक दिया, या जो जिस चाइल्ड का एब्यूज़ होने वाला था वो वहाँ से भाग गया, या कुछ भी करके, ठीक है। उस केस में क्या है, उस केस में फिर वही बात है, इतने छोटे, जब जो एक्चुअली में क्राइम हुआ नहीं, जिसका अटेम्प्ट हुआ था, विच इज़ अगेन ए क्राइम, लेकिन उस केस में अगर आप, हाँ इट इज़ ऑल्सो क्राइम, अटेम्प्ट टू कमिट अ क्राइम इज ऑल्सो क्राइम। अगर उस केस में अगर आपको पुलिस में नहीं रिपोर्ट करना है, तो उस केस को वहीं पे रोकने के लिए उसको ऑस्ट्रासाइज कीजिए, ठीक है। अपने बच्चे को समझाएं कि बेटा ऐसे बंदों से दूर रहना है, ठीक है। और उसके खिलाफ एक अपने बच्चे के लिए एक स्टैंड लें, ठीक है। उसके खिलाफ वो करें घर में यार कि या तो ये अब घर में नहीं रहेगा, इसने अगर ऐसा काम किया तो ये अब घर में नहीं रहेगा, ठीक है। इस टाइप से करके आपको उसके खिलाफ एक्शन तो देखो बिल्कुल लेना बनता ही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मतलब एंटरटेन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल एंटरटेन तो बहुत दूर की बात है। इनको सबसे पहले पुलिस में जाकर रिपोर्ट करना चाहिए, और अगर रिपोर्ट नहीं कर रहे हो, इंटेंसिटी अगर स्मॉल थी या अटेम्प्ट ही था, या फिर अटेम्प्ट भी अच्छे से नहीं हो पाया, तो उसको ऑस्ट्रासाइज कीजिए घर से। हर वाला कोई टॉफी या चॉकलेट दे, उतना ही ज़रूरी उसको ये बताना भी है कि बेटा अपना कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, लेकिन अगर तरीका, लेकिन हर प्यार दिखाने का एक तरीका होता है, और हर चीज़ की एक हद होती है, और अगर वो तरीका या वो हदें पार हों, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वेयर टू मूव, वेयर टू स्टॉप द सामने वाला बंदा, राइट। अगर तुमको लगे कि अगर तरीका उसका बदलने लग रहा है, अगर उसकी हरकतें जो हैं वो हदें पार करने लग रही हैं, तो वहाँ पे चिल्लाओ, अपना स्टैंड लो, वहाँ से भागो, हमारे पास आओ, मॉम डैड के पास आओ, पेरेंट के पास आओ, दादा नाना नानी, जो भी आपको सबसे रिलायबल वो लगता है बंदा आपके पास में उस टाइम, उसके पास जाओ,
अगर स्कूल में आपके साथ अगर ऐसा कुछ होने लग रहा है तो वहाँ से भागो, क्लास टीचर के पास जाओ, प्रिंसिपल ऑफिस में जाओ, अपने किसी सीनियर के पास जाओ, जो भी आपको एक हेल्प लगे उसके पास जाओ, राइट। तो ये सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़, मिताली वही मैंने बता चुका हूँ कि डिफरेंट उनमें होता है। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन अगर किया है, फोर्सिंग टू टच जेनिटल एरियाज, ये सब जेनिटल एरियाज, ऑनलाइन सोलिसिटेशन, ये सब उसके उसमें पार्ट्स में आ जाता है चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ में। Another type of child abuse is neglect. It is very common in India. It is very common in not even in India, but in the world also. But it is the most ignored kind of sexual. It is the most ignored kind of child abuse, you can say. Neglect एक ऐसा आज के दिन इतना प्रिवेल कर रहा है सोसाइटी में, लेकिन मिताली इसको सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, ठीक है। इसमें कई सारे वो हो जाते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ अब्यूज विच इन्वॉल्व्स डिप्राइविंग अ चाइल्ड ऑफ एडुकेट फूड, clothing, shelter, supervision, medical care and education. Neglect also harms children, although it is more about inactive and not doing something than the previous forms of abuse. अब देखो इसमें क्या होता है, अब फिर आप कहोगे कि सागर आप बहुत कंट्रोवर्शियल हो रहे हो, बट Sagar, I want you to speak on controversial things because that is why we are here, to create awareness and to talk about controversial things. And बिल्कुल, देखो मिताली, मैं कंट्रोवर्शियल बेशक बोलूं, लेकिन मैं ज़मीनी हकीकत पे जो आज के दिन चल रहा है ना, ग्रास रूट लेवल पे, मैं हमेशा वो बयां करता हूँ, ठीक है। और वो एक ऐसी चीज़ होती है जो लोगों को पता होती है लेकिन उसके खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठाता, वो सबसे गलत चीज़ लगती है, ठीक है। नेगलेक्ट का देखो आज के दिन क्या होता है, बच्चा नेगलेक्ट फील करता कैसे है। देखो मॉम डैड है, किसी कोई बच्चा है जेड, उसके मॉम डैड है, बोथ ऑफ देम आर वर्किंग, ठीक है। विद बोथ ऑफ देम आर वर्किंग, वो वही सुबह 8 to 5 8 to 6 का वाला ऑफिस टाइम, उसके बाद ऑफिस टाइम पे आके ऑफिस वर्क रहता है, ठीक है, जिसमें वो अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाते। मिताली, मेरे हिसाब से उस चीज़ को फ्रॉम द वेरी अर्ली बिगनिंग आज से उस चीज़ को रोकना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सब लोगों को यही बताना चाहता हूँ, जो भी वर्किंग है, अपने टाइम को ऐसे मैनेज कीजिए कि हम फैमिली को भी टाइम दें, अपने काम को भी टाइम दें, अपने खुद को पर्सनल को भी टाइम दें, ठीक है। फैमिली को टाइम देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज के दिन है ना, क्या एक वो चीज़ हो गई है कि करियर दिखता है लोगों को, लेकिन फैमिली टाइम को बिल्कुल भूल जाते हैं। उसमें भी उन्होंने टाइम टेबल बना रखा है कि ठीक है, हम संडे को 12 से 2 अपने बच्चे के साथ बैठेंगे, उसके साथ लूडो खेलेंगे, उसके साथ ये करेंगे। अभी कोई वीकेंड क्लासेस थोड़ा ही चल रही है तुम्हारी जो 12 से 2 बच्चे के साथ बैठोगे, ऑलराइट। उसमें भी उस चीज़ का हमको एक ध्यान रखना पड़ता है कि यार बच्चे को डेली टाइम की ज़रूरत है, राइट। उसमें ऐसा नहीं है कि आप उसको सिर्फ सैटरडे या संडे का तुमने कोई टाइम मैनेजमेंट कर लिया और उस टाइम के अनुसार आप बच्चे को टाइम देंगे, थोड़ा बहुत उसमें उसको पढ़ाएंगे, उसके बारे में पूछेंगे, ऐसे नहीं होता है। मतलब मेरी आपके थ्रू सबसे मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ठीक है, काम करो, वर्क इज़ लाइफ, राइट टू वर्क हमारे पास भी है, सबके पास है काम। अब इसमें एक प्रॉब्लम और आ जाती है मिताली, एक और इसमें सोशली उसको काफ़ी वो माना जाता है। जैसे देखो कई लोग क्या होते हैं ना, क्या बोलते हैं कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ है, वो बोलेंगे कि वाइफ को कि तू क्या करेगी काम करके, मैं कर रहा हूँ ना, तू बच्चों को संभाल। होता है, ऐसा होता है मिताली। एंड ये पैट्रियार्कियल सोच जो है ना, ये सबसे पहले छोड़ो। मैं आपके थ्रू यही बताना चाहता हूँ कि ये इसमें से इतनी पैट्रियार्कियल ये बू आती है ना, इस चीज़ को राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग छोड़ दो आप। जितना राइट टू वर्क, जितना काम करने का हक आपका है, उतना ही काम करने का हक आपकी वाइफ का भी है। जितनी स्कूलिंग, जितनी कॉलेज तुमने किया है ना, जितनी पढ़ाई तुमने की है, उतनी ही पढ़ाई, उतनी ही कॉलेज, उतना ही सब कुछ एजुकेशन आपकी वाइफ ने भी ली है। तो ये कहाँ का, ये पुरुष प्रधान समाज को छोड़ो। जो पुरुष प्रधान समाज चल रहा है ना आज के दिन, ये कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स सोच को छोड़ो कि काम सिर्फ हस्बैंड करेगा, वाइफ घर में रह के बच्चे पालेगी, बच्चे पढ़ाएगी, बच्चे को वो करेगी, ठीक है। उस चीज़ को सबसे पहले छोड़ो। हाँ, जितना हक तुम्हारा काम करने का, उतना ही हक आपकी वाइफ का भी काम करने का है, लेकिन उस चीज़ में भी खुद को भी और अपनी वाइफ को भी बोलो कि यार एक टाइम मैनेजमेंट बनाते हैं, जिसमें हम अपने काम को भी प्राथमिकता देंगे और उसके थ्रू अपने काम के साथ साथ अपनी फैमिली को भी टाइम देंगे, ठीक है। क्योंकि आफ्टर ऑल बच्चे की ग्रोथ, कोई भी नैनी, कोई भी हेल्पर, कोई भी केयर गिवर, कोई भी केयर टेकर बच्चे की उतनी ग्रोथ नहीं कर सकता मिताली, जितना उसके माँ बाप कर सकते हैं। और माँ बाप, मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यार, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मतलब मैं आप सोशल प्लेटफॉर्म पे
शायद बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन मतलब मैंने ऐसे ऐसे एग्जांपल देखे, मॉम डैड दोनों वर्किंग है, बच्चा शाम तक मम्मा की भी शक्ल नहीं देख पाता है। मम्मा शाम को आती है, आते ही घर के काम करने रहते हैं, बच्चे को अगले दिन स्कूल के लिए उसके कपड़े धोने रहते हैं। मतलब ये एक ग्राउंड लेवल रियलिटी है। और फिर रात हो जाती है, रात का डिनर करते हैं और फिर सो जाते हैं, बिकॉज पूरा दिन में इतना थक जाते हैं। बच्चे के पास कहाँ टाइम रहा? दैट इज नेग्लेक्ट। बच्चा उससे नेग्लेक्ट फील करता है। वो चीज़ बच्चे में एक इतना वो लग जाती है कि यार मतलब मेरा कौन है। उस चीज़ में बच्चे को ऐसा लगने लग जाता है कि मैं तो अकेला हूँ, और अकेला होता है तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। आज के दिन ये भी एक लोगों ने एक मजाक बना रखा है कि बेटा डिप्रेशन कुछ नहीं होता, ठीक है। गॉड विलिंग, फॉर्चुनेटली आई हैव नेवर बीन इनटू डिप्रेशन, लेकिन मुझे पता है यार देयर इज समथिंग कॉल्ड डिप्रेशन। हो जाता है बच्चों को, इनफैक्ट बड़ों को भी हो जाता है। और ये चीज़ होती है बिकॉज वो नेग्लेक्ट फील करते हैं किसी न किसी चीज़ से। रीजंस बहुत रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें नेग्लेक्ट का भी एक रीज़न आता है। जो पिता का प्यार होता है ना, उसका कोटा पिता ही पूरा कर सकते हैं, और जो माँ का प्यार होता है उसका कोटा माँ ही प्यार पूरा कर सकती है ना। ये एक फैक्ट है, ठीक है। कभी भी मॉम जो है डैड की जगह नहीं ले सकती, डैड जो है मॉम की जगह नहीं ले सकते। और बच्चे को दोनों का प्यार चाहिए उसकी ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, है ना। तो ये सब है नेग्लेक्ट। इसलिए आज के दिन मतलब इतना कॉमन हो चुका है नेग्लेक्ट, लेकिन फिर भी मिताली कोई इसके बारे में ना तो बात करने को रेडी है, ना इसके बारे में कोई एक्शन लेने को रेडी है, ना इस पे फोकस करके इसको फिक्स करने के लिए रेडी है। एंड ऑल्सो देर इज दिस वन टैबू की जिसकी हम बात करें, लाइक अ कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम मी कि पेरेंट्स सेइंग कि हमें मत सिखाओ हमारे बच्चों को हम कैसे बड़ा करें। हाँ, अगर किसी को बोल दो कि बिल्कुल ठीक कह रही हो, फिर उनसे ज़्यादा सत्यवादी और हरिश्चंद्र से लेके फिर उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं होता कि यार हमारा बच्चा है, हम तो इसकी परवरिश में पता नहीं पूरा ध्यान दे रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम इसको। यार बच्चा जो है ना, सबसे ज़्यादा बच्चा आपका समय मांग रहा है। अपने समय को इस तरह से निकालो कि उसके साथ अगर लूडो भी खेलना है ना, अगर वीकेंड पे एक बार लूडो भी खेलना है कोई बात नहीं, खेलो, लेकिन कम से कम उसको वीक टाइम में भी कुछ इतना टाइम दे दो। अरे कम से कम उस कई केसेस ऐसे होते हैं, मतलब वो बच्चों को तक का होमवर्क तक कंप्लीट नहीं करवा पाते, क्योंकि बच्चा स्कूल से आता है, उसके बाद तुरंत बाद वो स्कूल के बाद क्या बोलते हैं अपना या तो अपना ट्यूशन सेंटर पे चला जाता है। मिताली, मैं तो जब 11th-12th क्लास में था ना, जब पहली बार ट्यूशन पे गया था, क्योंकि अपेरेंटली स्कूल में मैं वैसा नहीं पढ़ पाता था जितना ट्यूशन पे। आजकल के बच्चे यार मतलब नर्सरी केजी क्लास के बच्चे ट्यूशन पे जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए हमारी सोसाइटी से, ठीक है। तो नेग्लेक्ट के बाद अब आप थोड़ा सा लो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ कि क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं, क्या क्या चीज़ें किन किन चीज़ों के अंडर चिल्ड्रन प्रोटेक्टेड हैं, या फिर क्या क्या चाइल्ड के राइट्स हैं, वो सब इसमें दिया गया है। फर्स्ट वन इज आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 देखो वही सिंपल है, सिंपल फिनोमिना है। वो बोलता है कि राइट टू इक्वलिटी, राइट टू कि सब बंदे जो हैं, सब ऑल मैन वुमेन चिल्ड्रन सारे सिटीजन जो हैं इक्वल हैं, इक्वलिटी ऑफ लॉ, ठीक है। अब इसमें बिल्कुल यही बोलता है कि चिल्ड्रन जो हैं वो भी बिल्कुल इक्वल रहते हैं एज कम्पेयर टू मैन एंड वुमेन जो भी है। आर्टिकल 15 बोलता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इसमें ये बोला गया है कि यस, इसमें चाइल्ड से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है कि वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए अगर गवर्नमेंट कुछ भी चाहे तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, ठीक है। विच इज़ अगेन काइंड ऑफ थोड़ा सा रेलिवेंट टू द चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड ऑल, ठीक है। लेकिन फिर आता है आर्टिकल 21A। ये जो है आर्टिकल 21A, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बोलता है कि इट मेक्स द मैंडेटरी फॉर द स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन इन द 6 to 14 एज ग्रुप। 6 से 14 साल के बच्चे को एजुकेशन जो है वो कंपलसरी है। 6 से 14 साल के बच्चे को पढ़ाना कंपलसरी है इंडिया में। ये उन्होंने एक फंडामेंटल राइट बना दिया, ठीक है। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं रखा, इसको हमारा एक फंडामेंटल राइट बना दिया। हिंदी में बोलूँ तो मौलिक अधिकार इसको बना दिया कि हर बच्चे का 6 to 14 ईयर्स तक पढ़ना अनिवार्य है। मॉम डैड को कैसे भी करके बच्चों को पढ़ाना ही पड़ेगा, चाहे कितने भी गरीब ना हो। इसमें क्या होता है, इसमें फिर कई एनजीओज आ जाती हैं। एनजीओज इंटरवीन करती हैं, वो हेल्प करती हैं बच्चों को पढ़ाने में। वो डोर टू डोर जाके या फिर रूरल एरियाज़ में जाके, विलेजेस में जाके बच्चों को पढ़ाती हैं अपने लेवल पे। लेकिन उसमें बोला गया है कि फंडामेंटल राइट है आपका 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है। फिर आर्टिकल 23 की बात आती है। आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। ये अगेन आज के दिन मिताली एक ऐसा क्राइम है और ऐसा चीज़ है जो कि बहुत डे बाई डे बढ़ने लग रहा है।
लेकिन इसके बारे में स्ट्रिंजेंट रूल्स भी आ चुके हैं, लेकिन ये ग्राउंड लेवल पे इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इसको स्टॉप करने में इसको पता नहीं स्टॉप नहीं हो पा रहा है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा चाइल्ड ट्रैफिकिंग का लेके, एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। आई डन माई लॉ फ्रॉम सिंथेसिस पुणे, एंड सो आई वाज इन पुणे फॉर 5 years। तो वहाँ पे जो मेरा कुक था ना, जो मैंने कुक हायर किया था, उससे एक बार मैं ऐसी कुछ बात हो रही थी और उसने मेरे को बताया कि भैया एक्चुअल में ट्रैफिकिंग होती कैसे है। एंड मिताली, आई वॉज शॉक्ड कि मतलब कैसे नॉट ट्रैफिकिंग नॉट ओनली इन इंडिया, कैसे नेपाल से, ही वॉज ए नेपाली, जो मेरा कुक था ही इज फ्रॉम नेपाल, वो नेपाल से था। तो वो बताता था कि कैसे नेपाल से इंडिया चाइल्ड ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। देयर इज ए अथॉरिटी, वो अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप जो भी बॉर्डर क्रॉस करें, इंडिया से नेपाल में जाए, नेपाल से इंडिया में आए, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि उनको प्रॉपर चेक करना, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना, और फिर उनको दूसरी कंट्री में जाने का अलाउ आप परमिट कर सकते हैं। तो वो कुक बता रहा था कि भैया क्या होता है ना, कि जैसे बॉर्डर क्रॉस करवाते वक्त, स्मगलिंग करवाते वक्त बेसिकली क्या करते हैं, वो सिर्फ राशन कार्ड की कॉपी मांगते हैं, ठीक है। अब उसमें सपोज किसी गर्ल को अगर ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, किसी गर्ल की ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, तो उसमें ये बताते हैं कि देखो ये राशन कार्ड है। उस राशन कार्ड को क्या करते हैं, बिल्कुल या तो ब्लर बना देंगे, या उसका बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट, वो फोटो प्रिंट आउट जो होता है, फोटो कॉपी जो होती है, वो ब्लैक एंड वाइट से निकलवा देंगे उसकी। उसमें जो है, उसमें अच्छे से दिखेगी भी नहीं, उसमें अच्छे से पूरी फैमिली नहीं दिख रही है। उसमें वो क्या करते हैं कि देखो ये लड़की है, ये मेरी बहन है, ये पहले छोटी थी, अब ये राशन कार्ड पहले का है, अब ये बड़ी हो गई है। और वो जो अथॉरिटी के जो बंदे होते हैं वो अलाउ कर देते हैं विदाउट वेरिफिकेशन, विदाउट फर्दर वेरिफिकेशन। इस टाइप से करके ये बहुत बड़े लेवल का एक ट्रैफिकिंग वो चल रहा है, समझ रहे हो। इस चीज़ को मिताली रोकना है फ्रॉम द वेरी इमीडिएट इफेक्ट। इस चीज़ में अब हम कैसे कर सकते हैं, वो तो देखो, अब उसमें पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़े, उस अथॉरिटी को और ज़्यादा अवेयर करना पड़े कि ऐसे ऐसे करके आपके नाक के नीचे से ऐसे स्मगलिंग होने लग रही है, आप उसको रोको। या फिर अगर वो अथॉरिटी नहीं कर पा रही है, तो वहाँ पे उनकी एक हेल्पिंग अथॉरिटी और वहाँ पे CISF, BSF या कोई भी जवान वहाँ पे डिप्लॉय किए जाएँ कि आप जाओ वहाँ पे और उनकी हेल्प करो और ये ट्रैफिकिंग होने से रोको, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में आर्टिकल 23 जो है प्रोटेक्ट करता है ट्रैफिकिंग और इन सब से लेके। अगेन आर्टिकल 24 ये बोलता है कि आप कोई भी चाइल्ड से काम नहीं करवा सकते। इट प्रोहिबिट्स द चाइल्ड लेबर एंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 years ऑफ एज। 6 to 14 years का तो आपका राइट टू एजुकेशन है, फंडामेंटल राइट्स। 14 years से एज से पहले आपका प्रोहिबिशन भी है चाइल्ड लेबर पे। वो प्रोहिबिशन कैसा है कि गवर्नमेंट ने ना कुछ पहले 83 कुछ ऐसे डिफरेंट फील्ड्स थी जहाँ पे उनको हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट का दायरे में डाली थी, उनको हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट का दर्जा दे दिया गया था। तो उसमें क्या था, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, 83 की बजाय उसने उन सारी डिफरेंट फील्ड्स को तीन हिस्सों में ला के बांट दिया, ठीक है। फर्स्ट वन इज माइनिंग, सेकेंड वन इज एक्सप्लोजिव, और थर्ड वन इज आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, शायद या तो हैजार्डस फैक्ट्रीज है या कुछ ऐसा है, ठीक है, विच इज हैजार्डस इन नेचर। अगर कोई भी फैक्ट्री, माइन, एक्सप्लोजिव वर्क या पटाखा फैक्ट्री है ना, केमिकल फैक्ट्री या कुछ भी अगर ऐसा कुछ है जो थोड़ा हैजार्डस उसमें आता है, उसमें 14 से 18 साल का बच्चा काम नहीं कर सकता। फर्स्ट गवर्नमेंट ने ये बोला है कि 18 ईयर से नीचे का कोई भी अगर चाइल्ड है, कोई भी अगर एडोलेसेंट है, कोई भी अगर मतलब कोई भी इंडिविजुअल है, वो हैजार्डस फैक्ट्रीज में काम नहीं कर सकता। 14 से 18 साल का बच्चा काम कर सकता है, लेकिन हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में काम नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब दिस मीन्स 15 साल का बच्चा जो है वो काम कर सकता है, ठीक है। काइंड ऑफ चाइल्ड लेबर के नज़रिए से, या फिर किसी के घर में काम करना हो, या फिर कैसे भी काम करना हो तो काम कर सकता है। देयर वाज दिस लॉ, सिविल राइट्स कंडक्ट रूल्स, इंडियन सिविल राइट्स कंडक्ट रूल्स, उसमें लिखा है कि 14 साल से ऊपर का बच्चा जो है घर के काम कर सकता है, या फिर उसमें ये भी हो सकता है 14 साल से नीचे का जो बच्चा है, जो लेस देन 14 ईयर्स है, वो फैमिली बिजनेस में अपने मॉम डैड की हेल्प करा सकता है, ये उसमें लिखा है। फैमिली बिजनेस कैसा हो सकता है कि अगर कोई जैसे कोई घरों में काम करते हैं तो उनके साथ कोई स्वीपिंग का काम करते हैं, या फिर कोई जैसे रूरल साइड जाते हैं तो बीड़ी फैक्ट्री होती है,
बीड़ी फैक्ट्री या ये सब होती हैं, इन सब में जो बच्चा है काम कर सकता है, बशर्ते स्कूल टाइमिंग में नहीं कर सकता, और जो अगर पब्लिक हॉलीडेज हो सकते हैं उनमें कर सकता है, स्कूल के बाद कर सकता है। अगर वो 8 to 2 o'clock अगर वो स्कूल में रहता है तो स्कूल से आने के बाद वो अपने मॉम डैड की हेल्प करा सकता है। ये नहीं है कि उसकी स्कूल की छुट्टी करवा के उससे स्कूल टाइमिंग्स में आप काम करा रहे हो। अगर आप स्कूल टाइमिंग्स में काम करवा रहे हो तो यू विल बी हेल्ड लायबल। ओके, तो आप उससे ये सब कुछ प्रोविजंस उन्होंने उसमें डाले हुए हैं। नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 39E, जो एक छोटी सी बात बोलता है, दिस इज आवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें ये बोलता है कि इट एंजॉयज द स्टेट टू एंश्योर दैट द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स, मैन एंड वुमेन एंड द टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूज्ड। ठीक है, इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसमें बस ये बोल दिया गया है कि बच्चे की जो टेंडर एज है उसमें किसी भी तरीके का उसको चाइल्ड अब्यूज़ नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 39F अगेन वो चाइल्ड के डेवलपमेंट की बात करता है कि आप अपने बच्चे को एक फ्री एनवायरनमेंट दीजिए, आप उसकी परवरिश अच्छे से कीजिए, आप उसको किसी भी तरह के अब्यूज़ से बचाइए, आप उसको बाहर के अब्यूज़ से बचाइए, घर के अब्यूज़ से बचाइए। इस टाइप से करके आर्टिकल 39 सब क्लॉज एक्ट जो है वो उसकी वो देता है, उसके बारे में बताता है। ठीक है, उसके बाद कई सारे इंडिया में ना पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स निकले हैं। उन पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स के थ्रू क्या होता है कि बच्चे को कई सारी प्रोटेक्शन दी गई है, जैसे नेशनल पॉलिसी ऑफ चिल्ड्रन फॉर 1974 से चलता रहा है। इन सब का नाम तो देखिए, नेशनल चार्टर ऑफ फॉर चिल्ड्रन, नेशनल प्लान फॉर एक्शन, चाइल्ड लाइन सर्विसेज, ऐसे करके काफ़ी सारे पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स हैं। जो रिसेंट बनाया था प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट, दैट इज पोक्सो एक्ट, ये काफ़ी एक चेंजिंग वो रहा है इंडिया के उसमें, जो और चाइल्ड लेबर को भी काफ़ी हद तक स्टॉप करने में और सेक्सुअल अब्यूज़ को और चाइल्ड अब्यूज़ को स्टॉप करने में काफ़ी हद तक ये मददगार साबित हुआ है। ये 2012 में जो आया, इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, थैंक्स टू यूपीए गवर्नमेंट, जो कि इसमें इन्होंने क्या किया कि रूल्स को इतना स्ट्रिंजेंट बना दिया, लॉज को इतना स्ट्रिंजेंट बना दिया कि अगर आपने छोटा सा भी कुछ अगर क्राइम कमिट किया ना, तो आपको सज़ा जो है उसकी डबल या ट्रिपल मिलेगी, विच वॉज अ वेरी गुड स्टेप। अदरवाइज लोग सुधरते नहीं है यार, लोग सुधरते नहीं है। मतलब मैंने एक सोडोमी का केस देखा था, एक चाइल्ड अब्यूज़ का केस था, सोडोमी का केस था। वो हमारे जो अपना वो हैं एडवोकेट एंड सॉलिसिटर जो हैं, हमारे चैम्बर में वो अलॉट हुआ था। आई वॉज इंटर्निंग दैट टाइम, आई वॉज इन माई सेकंड थर्ड ईयर, जब मैंने देखा था सोडोमी का केस था। उस केस में उन जो 3 कल्प्रिट्स थे उनके ऊपर पोक्सो एक्ट लगा था। मिताली 10 साल तक बाहर नहीं निकले थे वो, मतलब अभी भी अंदर ही है, समझ रहे हो, सीधा 10 साल। कोर्ट एंटरटेन नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए यार, ऐसे केसेस में करना भी नहीं चाहिए। दैट्स वाई वो पोक्सो एक्ट लेके आए, जिसमें रूल्स को इतना स्ट्रिंजेंट बना दिया कि यस, अगर आपने छोटी सी गलती की तो जाओगे सीधा 10-12 साल के लिए अंदर, जो कि इट वॉज द नीड ऑफ द टाइम, इट वॉज द नीड ऑफ द आवर, करना चाहिए था ऐसा। मतलब आई सीरियसली वेलकम इट। ऑलराइट, बाकी सारे जो हैं ये पॉलिसीज़ हैं, प्लान्स हैं, किस तरह से अपना विमेन मिनिस्ट्री ऑफ ये है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये कैसे काम करते हैं, उन सब के बारे में डिफाइन किया गया है। तो ये सब आपके पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका रोल ऑफ सेलिब्रिटीज़। देखो, सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो एक काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले करते हैं सोसाइटी के लिए, राइट। उसमें क्या, क्योंकि मिताली क्या है ना, वो लोग जो बोलते हैं वो लोग सुनते हैं, ठीक है। तो जैसा मैंने पिक्चर लगाया है प्रियंका चोपड़ा का, प्रियंका चोपड़ा इज़ द एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ एंड शी इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब यार। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ की जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है, और ये काफ़ी सालों से यूनिसेफ की सिंस 2006, हाँ 2006 से यूनिसेफ से जुड़ी हुई है। एंड इस लेडी ने जो काम किया है ना चिल्ड्रन के लिए और चाइल्ड अब्यूज़ को ख़त्म करने के लिए, या फिर जो रेफ्यूजी चिल्ड्रन हैं जो अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में आ जाते हैं, उनको कैसे, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे बचाया जाए, उनको कैसे ह्यूमैनिटी के ग्राउंड्स पर उनको कैसे सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, इसके लिए प्रियंका चोपड़ा ने जितना काम किया है, मतलब लाइक सीरियसली हैट्स ऑफ टू हर। तो मतलब इस चीज़ में तो मैं आपके चैनल के थ्रू ये बोलना चाहता हूँ कि जितने भी जो सेलिब्रिटीज़ हैं ना, वो लोग बाहर आएँ, वो लोग इसको ओपन में आके इसको बोलें, इन सब चीज़ों को, और इन सब के खिलाफ एक स्टैंड लें, क्योंकि लोग उनकी सुनते हैं यार, क्योंकि लोग उनकी सुनते हैं। अब वही बात है, अब सलमान खान, शाहरुख खान, ये सब इन चीज़ों पे आके अगर बोलेंगे तो लोग उनको सुनेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनका एक इतना बड़ा एक फैन फॉलोइंग है, समझ रहे हो। तो इस चीज़ में ऑब्वियसली ऑल द बेस्ट टू प्रियंका चोपड़ा कि आगे भी कई सारे प्लान्स, मैंने सुना था इसका, आगे भी कई सारे प्लान्स लेके आ रही हैं इन सब के ऊपर, और शी हैड डन अ वेरी वंडरफुल जॉब।
ठीक है, तो सेलिब्रिटीज़ को भी इसमें आगे आके बोलना चाहिए, ओपन अप होना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज, ठीक है, शाउट आउट अगेंस्ट द चाइल्ड अब्यूज़, जितना भी है इसके खिलाफ शाउट आउट कीजिए, इसके खिलाफ बोलें, ओपन बने, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और बच्चों को इसके बारे में उजागर करें कि बेटा अगर ऐसा ऐसा कुछ होता है तो आप उसके सामने आके बच्चे के साथ वही बात है ना, ओपन अप हो। अब मैंने वो नेगलेक्ट वाले केस में बोला कि पेरेंट्स जो है आज के दिन बच्चे को टाइम ही नहीं देते, ठीक है। अब वो बच्चे को टाइम नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं माँ बाप का प्यार जो लैक करता है ना, तो कहीं ना कहीं मिताली उनसे दूर होने लग जाता है। अब वो दूर होने लग जाता है, कल को खुदा न खास्ता अगर उनके साथ अगर कुछ चाइल्ड अब्यूज़ का कोई भी किसी भी फॉर्म में अगर कुछ होता है तो वो इतने नेगलेक्ट फील करते हैं कि वो अपने मॉम डैड को बताते भी नहीं है। वो ये सोचते हैं कि यार बताने का क्या फ़ायदा है यार, मम्मा इज़ बिजी इन हर वर्क, पापा इज़ बिजी इन हिज वर्क, बात को लेट गो कर देंगे, क्या बताने का फ़ायदा, जाने दो। तो ये भी अगेन एक नेगलेक्ट का एक वो रीज़न निकल के आता है। तो ये था मिताली, अभी आप कुछ इसके बारे में आप कंक्लूड करना चाहेंगे? नहीं, I have a few questions for you. बिल्कुल मिताली, yes. So apart from like let's talk about the long term consequences, उसके बारे में हम जो एक बात करते हैं कि एक बच्चा neglect feel करता है और in parts of emotional neglect और sexual neglect, like sexually abused किया गया है and if he is not saying anything or if the parents are not taking a stand against that child, तो एक ऐसा पॉइंट भी आ सकता है कि ये बच्चा आगे जाके खुद एक अब्यूज़र बन जाए या खुद इतना उसमें ये हो जाए एंड वो राइट एंड रॉन्ग ना समझ पाए कि मेरे साथ ये हुआ था तो शायद से आगे जाके ऐसी टेंडेंसीज कर सकता लाइक उसमें आ सकती है। So what is your take on that, and have you ever seen such kind of cases wherein you know कि the person who was abused or who is an abuser, like let's say adult has abused a child, तो उसकी जब हम adult की case history देखते हैं तो उसमें दिखाई देता है कि he was also abused at some point in his life in his childhood. सो ये केसेस कितने दिखाई देते हैं इंडिया में कि यू नो सच काइंड ऑफ बिहेवियर्स स्टार्ट लाइक ये डेवलप होता है बिहेवियर आगे जाके? यस देखो मिताली, जितना ज़रूरी अपने बच्चे को गुड टच एंड बैड टच के बारे में बताना है, जितना ज़रूरी अपने बच्चे को ये बताना है कि बेटा अगर आपके साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, उतना ही ज़रूरी उसको ये बताना भी है कि बेटा ये जो चीज़ होती है ये गलत होती है। आप उसको डिफेंसिव तो बता रहे हो, लेकिन उसको एट द वेरी सेम टाइम आप उसको ये नहीं बता रहे कि बेटा ये जो चीज़ होती है ये गलत होती है, ये तुम्हारे साथ हो किसी और के साथ हो तो ये बहुत गलत है। इस चीज़ को एट द वेरी इमीडिएट इफेक्ट रोकना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए। उसको बच्चे को संस्कार दो। वो संस्कार देखो वही बात है, संस्कार आपको तभी आएंगे जब आप अपने माँ बाप के साथ बैठोगे, उनके साथ टाइम निकालोगे। तो मिताली मेरा वही बोलना है कि सब बच्चों को कि अपने बड़ों के साथ ज़रूर बैठें, ठीक है, क्योंकि बड़ों के साथ बैठने में बातों में से इतनी बातें निकल के आती हैं जो कि आपको एक सामाजिक और एक शिष्टाचारिक आदमी बनाने में एक बहुत हेल्प करती हैं आपकी लाइफ में आगे, ठीक है। और रही बात आपने जो ये बोला कि कैसे कैसे क्या साइंस रहते हैं, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं, मिताली इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो देखो बहुत सीवियर रहते हैं। बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, बच्चा शायद डिप्रेशन में उस टाइम ना जाए, बच्चा बड़ा होकर भी डिप्रेशन में जा सकता है, या फिर वो PTSD से वो कर सकता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं, उससे हो सकता है उसको। उसके बाद पैनिक अटैक्स आ सकते हैं उसको। वो वही बात है ना, बचपन की जो बातें हैं ना मिताली, अब आप खुद बताइए, बचपन की हमारी इतनी सारी कुछ हमारी यादें होती हैं जो हमको अभी तक याद है। तो वो कुछ भी अगर किसी के साथ गॉड फॉरबिड कुछ भी गलत हुआ है तो वो उसकी यादें, उसकी बचपन की यादें उसकी गलत यादों में याद रह जाती हैं, जो कि उसको फिर ताउम्र हमेशा लाइफ में याद रहती हैं। तो अगर उसको वो बड़े होने के बाद भी अगर वो याद रहती है तो कहीं ना कहीं उसको डिप्रेशन में लेके जाती हैं, उसको PTSD होता है, उसको पैनिक अटैक्स आते हैं, उसको कहीं पे भी कुछ भी होता है, उसको कहीं भी ऐसा कुछ भी साइन या ऐसा कुछ दिखता है तो उसको दूर हटने की कोशिश करता है, राइट। तो उसको वो चीज़ लाइफ भर ताउम्र नहीं जाती है, उसके साथ वो हमेशा रहती है। और कई बार मिताली क्या होता है ना, वो चीज़ इतनी बढ़ जाती है कि उसको सुसाइडल थॉट्स भी आने लग जाते हैं। ये ट्रू है, ये होता है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, मतलब
मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया है, मुझे पता है यार ऐसा होता है। वो लोग सोचते हैं शायद कोई पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होगा जो इसको लेट गो कर देगा, मजाक में समझेगा, पागल समझेगा कि मैं जो भी बोल रहा हूँ पागलपंती बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता, ये वो ऐसा वैसा। हाँ ठीक है यार, देखो स्ट्रॉन्ग बनो, सारी चीज़ों को लेट गो करके आगे बढ़ो, लेकिन कई चीज़ें ऐसी छाप छोड़ जाती है, उसके लिए आपको एक काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उसके लिए आपको एक ऐसा वो अपने खुद को एक दिमाग को ऐसे वो रखना चाहिए कि यार ठीक है, हम इसको स्ट्रांगली लड़ेंगे, इसको वो करेंगे, लेकिन हाँ इनको लेट गो नहीं कर सकते। ये एक बच्चे पर एक बहुत ही एक्सट्रीमली छाप छोड़ जाता है, जो कि शायद बच्चे को पूरी उम्र उसकी लाइफ से उसकी यादों से बाहर नहीं निकल पाती वो चीज़। ऑलराइट, सेकेंड पार्ट एक है कि एज अ सोसाइटी लाइक हम पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को ऑब्वियसली बताएंगे आफ्टर लिसनिंग टू यू कि क्या होता है गुड टच, क्या होता है बैड टच, बट एज अ सोसाइटी एज अ होल इफ़ आई एम अराउंड चिल्ड्रन, लाइक किसी और के बच्चे हैं जिन्हें हम नहीं बता सकते, अब ऑब्वियसली द पेरेंट्स आर सपोज टू टेल, एज अ सोसाइटी हाउ कैन वी इंश्योर लाइक यू नो दैट अ चाइल्ड इज इन अ सेफ स्पेस, लाइक लेट्स से फॉर एग्जाम्पल if I want to recognize, like let's say मैं एक बच्चे को देख रही हूँ और मैं डिप्रेस देख रही हूँ, वो मेरा बच्चा नहीं किसी और का है, but I am seeing that you know some kind of behavioral patterns कि something is wrong with this child. How can we you know make it better, like for example like can we should we connect to the parents, or how should we go about it, like what should be our first step of approach if we feel that something is wrong? देखो सबसे वो कहते हैं ना बच्चे का सबसे पहला और सबसे सच्चा साथी उसके माँ बाप होते हैं। तो इस केस में मिताली सबसे पहले जाके उसके मॉम डैड को आप कांटेक्ट कीजिए, उनको बताइए कि देखो ऐसा ऐसा है, मुझे थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर लग रहा है बच्चे का, शायद ही इज़ गोइंग थ्रू समथिंग, तो प्लीज़ टॉक टू हिम, प्लीज़ आप उससे बात कीजिए, उसके बारे में जानिए कि वो क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, ठीक है। और एज अ सोसाइटी हम बहुत कुछ उसमें अपने इनपुट्स दे सकते हैं। हम उनको एक नॉलेज दें, एक एथिकली मॉरली, और इस टाइप से हम एक उनको बताएं कि बेटा क्या गलत है और क्या गलत नहीं है। कहते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि कल को तुम्हारे साथ कुछ हो जाए या फिर कुछ हो जाए तो अभी से उसके खिलाफ उसके लिए उनको प्रिपेयर करो कि बेटा अगर ऐसा होता है तो तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा करना है। जैसा कि आपने बताया कि गुड टच एंड बैड टच के बारे में उनको बताएं। देखो गुड टच एंड बैड टच के भी कई सारे डिफरेंट मायने होते हैं यार, कि व्हाट अमाउंट्स टू गुड टच एंड व्हाट अमाउंट्स टू बैड टच। अपने बच्चों को स्टार्टिंग से बताएं, जब भी देखो वो 1-2 साल के हो जाएं, तुमको लगे कि यस हाँ वो सोचने समझने लायक हो गया है, उसमें मतलब हाँ वो पूरे होशो हवाश में और वो सोच समझ सकता है कि क्या, तो उसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताएं कि बेटा क्या गुड टच होता है और क्या बैड टच होता है। उसको पता है कि जैसे कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं, अगर वहाँ पे अगर कोई टच करता है तो वो बैड टच कहलाएगा, लाइक चेस्ट पार्ट है, बट्स हैं, बिटवीन द लेग्स है। तो उनको बच्चों को इस बारे में उजागर बताइए, उनको अवेयर कीजिए कि बेटा अगर आपको यहाँ पे कोई टच करता है तो उसको आपको नो बोलना है, आपको चिल्लाना है, आपको वहाँ से भाग के किसी भी सेफ प्लेस पे आ जाना है। स्कूल में हो तो जैसा कि मैंने बताया प्रिंसिपल ऑफिस में जाओ, सीनियर्स के पास जाओ, टीचर्स के पास जाओ, घर पे हो तो हमारे पास भाग के आओ, या कुछ भी करो, आपको उस बारे में पता होना चाहिए। उनको ये भी बताएं कि अब देखो उसको बच्चे को ये भी बताएं कि जो गुड टच होता है वहाँ पे आपको जो भी आपके जो पार्ट्स बताए मैंने, बॉडी पार्ट्स, वहाँ पे कौन टच कर सकता है आपको, सिर्फ आपकी मम्मा वहाँ पे टच कर सकती हैं आपको, ऑलराइट। उनको इस तरीके से बताएं, या फिर डॉक्टर अंकल आपको टच कर सकते हैं। डॉक्टर अंकल भी टच कब कर सकते हैं, जब आपके मॉम या डैड की प्रेजेंस में टच कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से मिताली उस बच्चे को आप अवेयर कीजिए, राइट। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है बच्चे को बताना, गुड टच एंड बैड टच, अदरवाइज वो उसको पता ही नहीं चलेगा यार कि आई एम फीलिंग इन अप्रोप्रिएट वे और इनअप्रोप्रिएट वे, ठीक है। एंड these kind of conversations should also go gradually, ऐसा एक बार बता के वो बच्चा शायद भूल जाए। हाँ, एक बार बिल्कुल hence the emotional connect with the child should be every day, ताकि हम आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ये कॉन्वर्सेशंस लेके आ सके चाइल्ड के। सही बात।
उसमें 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 बच्चों को जैसे ऐसे बता सकते हैं, जब अगर किसी छोटे बच्चे को उसकी मम्मा जब नहला रही हो तब उनको बताएं कि बेटा देखो ये गुड टच है, ये बैड टच है, इस टाइप से करके। तो इसमें मॉम का एक बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट और स्पेशल और सबसे ज़्यादा रोल मॉम का ही रहता है इसमें बेसिकली। तो इस टाइप से बच्चों को अपना आप अवेयर कीजिए, है ना? यस यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इंडिया में चाइल्ड मैरिज एक है जो हमारे इंडिया में काफ़ी देखा जाता है इन द रूरल एरियाज, नॉट मतलब काफ़ी प्रेवेलेंट है वो। So if we as citizens, if we come across any kind of child marriages that are happening in India, like हमारे किसी फैमिली में है जो they live in the rural parts of India, किसी extended family में child marriages हो रहा है या child marriage के नाम पे trafficking हो रहा है, ऐसा कोई सिनारियो अगर हमें लग रहा है कि ये गलत है, ये गलत हो रहा है, तो how do we try to help in such a scenario? कहाँ एग्जैक्टली जाए, किससे मदद लेने की कोशिश करे, किसको रिपोर्ट करे, where should it be reported? पुलिस। Yes, but in our area or in the area where it is happening, उसके लिए आप अपने एरिया में भी रिपोर्ट कर सकते हो और मतलब फिर FIR बनती है, या फिर आप जिस एरिया में हो रहा है वहाँ पे भी वहाँ के पुलिस स्टेशन में जाके आप उनको वो कर सकते हो, या फिर आप SP को लेटर लिख सकते हो, आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लेटर लिख सकते हो कि फलाना एरिया में एट दिस टाइम वहाँ पे ये सब कुछ चल रहा था, ठीक है, मैंने देखा था। तो आप उसके ये इसमें NGO की कुछ हेल्प नहीं लेनी इसमें। तो अगर सीधा अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है तो मिताली सीधा रिपोर्ट कीजिए पुलिस को, क्योंकि अगर इस लेवल का अगर कोई स्कैम चल रहा है तो ऑब्वियसली वो बहुत बड़े लेवल का स्कैम चल रहा है और वो NGO से नहीं संभल पाएगा। तो उस केस में आप पुलिस को इन्वॉल्व कीजिए और पुलिस को तुरंत आप रिपोर्ट कीजिए। चाइल्ड मैरिजेस के का सिनारियो क्या है बेसिकली? देखो चाइल्ड मैरिजेस का सिनेरियो ऐसा है। देखो हमारे आर्टिकल 13 में ये लिखा गया, आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि लॉ इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, रूल, बाई लॉज, ऑर्डिनेंस या फिर कस्टम या फिर यूसेज। तो उसमें जो वर्ड है ना कस्टम, अब कस्टम का क्या होता है मिताली? कस्टम अगर किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में काफ़ी सालों से अगर कोई चीज़ चली हुई आ रही है तो वो वहाँ का कस्टम बन जाता है और वो कस्टम इतना सोशली एक्सेप्टेबल हो जाता है कि वो लोग उसको कानून मानने लग जाते हैं। अब मैं यहाँ पे इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। इंडिया इज़ लाइक मिताली जो अपन एक्चुअल में बैठे हैं ना, आप मुंबई में हो ना, राइट? आप मुंबई में हो ना अभी? हाँ, मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलोर में, कोलकाता में, ये सब जो यहाँ पे अपने को जो लाइफ देखने को मिलती है, दैट इज़ नॉट द एक्चुअल इंडिया। एक्चुअल इंडिया मिताली, आप किसी भी मेगा सिटी से आप 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर किसी भी डायरेक्शन में निकल जाओ, वहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा ना, वो होगा आपका एक्चुअल इंडिया, वेयर विमेन आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स, वेयर चाइल्ड मैरिजेस आर हैपनिंग, ठीक है? या फिर आप देखो अब आप किसी छत्तीसगढ़ साइड या बिल्कुल रिमोट एरिया में कहीं पे चले जाओ जहाँ पे चाइल्ड मैरिजेस होती हैं आज के दिन भी, और कोई रिपोर्ट नहीं करता उन सब चीज़ों को। तो उसमें वही बात है ना मिताली, अगर आप पुलिस पे रिपोर्ट भी करने जाओगे तो पुलिस भी उसको एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट समझ चुकी है कि यार ये देखो छोटी सी लोकेलिटी है, ये छोटी सी कम्युनिटी है, यहाँ पे करते हैं यार लोग, अब इसकी हम क्या FIR करें, क्या वो करें। लेकिन अगर आप फिर भी आपका हक है, अगर आप चाहो कि मुझे FIR करनी है तो आप FIR कर सकते हो, ठीक है? लेकिन फिर उसमें भी वो चीज़ वो जो एक सोसाइटल नॉर्म बन चुका है, जो एक कस्टम बन चुका है, उसको एक FIR तो कैसे तोड़ सकती है, राइट? तो उस केस में मिताली सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा आपका अवेयरनेस। आप NGOs की हेल्प लो और आप उन लोगों के पास जाओ, उनमें एक जागरूकता फैलाओ, उनमें अवेयरनेस फैलाओ कि देखो ऐसा नहीं होता है, हम इस चीज़ को रोकना चाहिए, हमें इसके ये प्रोज एंड कॉन्स हैं। लेकिन आप अवेयरनेस इज़ द ओनली वो, ठीक है? अब आदमी अवेयर होता है, इसलिए तो आदमी उन सारी सोसाइटल नॉर्म्स को छोड़ के आगे बढ़ता है, ठीक है? अब कस्टम था, अब जैसे सती प्रथा थी जो राजा राम मोहन रॉय ने 1829 में जो ख़त्म की, वो एक कस्टम ही तो चला आ रहा था, वो एक कस्टम बन गया था जिसको राजा राम मोहन रॉय ने रोका। तो वही चीज़ है, चाइल्ड मैरिजेस भी कहीं किसी पार्ट में कस्टम अगर बना हुआ है तो उस कस्टम को आप अवेयरनेस के तरीके से रोक सकते हो, राइट? तो ये इन सब चीज़ों पे आपको वो रखना चाहिए। I will move to the last question.
Anything other? Yes. Okay, all right. लास्ट क्वेश्चन कि हम लाइक वेस्टर्न कल्चर में मूवीज देखते हैं, अमेरिकन मूवीज देखते हैं, उसमें देयर इज अ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन वेयर दे हैव लाइक चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज wherein they work only towards protecting children who are being mistreated by parents. Like for example, any kind of mistreatment hoga to the parent is put into custody and the child goes into the their foster homes and all of that. तो ऐसा कोई system इंडिया में है क्या wherein let's say कि किसी ने complain किया about a parent that the parent is let's say consuming drugs or is like almost not there in the child's life, is into alcohol, is into drugs or is into hitting the child, becoming an abusive physically abusive household. तो कोई बाहर वाला कंप्लेन करके वो चाइल्ड को प्रोटेक्टिव कस्टडी में डाल के कुछ ऐसा कोई ऐसा सिस्टम है इंडिया में वेयर इन दिस हैपेंस और हाउ लाइक टू आस्क यू? देखो हैं तो प्रोटेक्टिव हाउसेज होते हैं और फिर उसमें क्या रहता है ना, अगर मामला कोर्ट में चला जाता है तो जब कोर्ट इंटरवीन करता है तो कोर्ट उसमें ऑर्डर देता है कि ठीक है, अगर इसका जैसा आपने एग्जांपल दिया कि अगर इसका डैड मतलब दारू पी के आता है और उसको मारता पीटता है ना, अगर ऐसा सिचुएशन होता है और अगर कोर्ट में अगर केस जाता है तो कोर्ट उसमें ये बोलती है कि ठीक है, कोर्ट उसमें ऑर्डर दे देगी कि ठीक है, आज से ये बच्चा अपने फादर के पास नहीं रहेगा, आज से ये बच्चा या तो मामा के घर या किसी क्लोज रिलेटिव के घर, या मतलब वो कोर्ट डिसाइड करती है कि अब से ये बच्चा इसकी पोजीशन में नहीं रहेगा, ये चाइल्ड उसकी पोजीशन में रहेगा। तो ये कोर्ट डिसाइड कर देती है। अभी जैसे एक जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट आया था, पहले तो 2000 में था लेकिन अब 2015 में उसको दोबारा से अमेंडमेंट्स करके उसको रिन्यू किया है, जिसमें काफ़ी सारे इन सब चीज़ों से रिलेटेड प्रोविजंस उन्होंने बना रखे हैं। और फिर वही बात है, कई सारे पोक्सो एक्ट, जैसा मैंने बताया, पोक्सो एक्ट में कई सारे ऐसे स्ट्रिंजेंट रूल्स उन्होंने डाल दिए कि फिर लोग इन सब चीज़ों से वो करते हैं। और एक नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड है मिताली, जिसमें उस नेशनल कमीशन के अंडर कई सारे गाइडलाइंस नेशनल इंडिया के अपने कमीशन ने वो गाइडलाइंस दे रखी हैं कि इनके उस पे आधार पे आप अब्यूज़ नहीं कर सकते, या अगर आपने अब्यूज़ किया तो उसमें आपको ये फेस करना पड़ जाएगा, या फिर हम चाइल्ड को उधर भेज सकते हैं, या हम उसकी पोजीशन उसकी वहाँ करवा सकते हैं। तो इस टाइप से है। देखो यूएस जैसी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, लेकिन है, इंडिया में है, ये सारी चीज़ें हैं इंडिया में, है ना। यूएस की यार इम्प्लीमेंटेशन उसकी, यूएस इज़ यूएस है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन उसकी गजब की है। इंडिया में वही बात है, कई सारी चीज़ें तो मैं वही बताया ना, रिपोर्ट ही नहीं हो पाते। तो जो वो रिपोर्ट नहीं हो पाते तो आप उस पर एक्शन कैसे लोगे, है ना। लेकिन यूएस में तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसके हर चीज़ का रिपोर्ट हो जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं मिताली, जिनको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और अपने बस लास्ट में मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ज़िम्मेदार पेरेंट्स बने, अपने बच्चों पे ध्यान दें, उनकी ग्रोथ पे ध्यान दें, उनको जितना ज़रूरी उनको स्कूलिंग कराना है उतना ही ज़रूरी उनको एक शिष्टाचारी बनाना भी ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी उनको बाहर की नॉलेज देना भी बहुत ज़रूरी है ना। उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम दें, उनके साथ बैठें, टाइम स्पेंड करें, काम करें, कोई बात नहीं, करियर बनाएं, सब कुछ वो करें, लेकिन फैमिली टाइम तो अलग से अपना पूरा निकाल के दें। और उनकी बच्चों की बातें सुने, समझें, परखें, वो किस चीज़ से गोइंग थ्रू होने लग रहे हैं, उन चीज़ों पे ध्यान दें, उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, है ना। और बस अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के आगे बड़ा बनाएं। Thank you so much, Advocate Sagar, for that amazing session. I'm sure that all of us now have a brief direction of the action that needs to be taken in the time of crisis. Also, I'm sure that this gives us the ability to stand up for children who don't yet have a voice of their own. With that note, I come to an end with the thought that the future of the child lies in the hands of us as adults, and it is upon us to take the right decisions and actions for them. For the audience, stay tuned for our upcoming episodes of Kya Aap Waqif Ho on topics such as cyberbullying, LGBTQ, senior citizens. Have an amazing day ahead. Keep safe and stay healthy. Also, stay tuned for our cause. Think once, think twice, think rise, and always
always be ready to rise into action. Thank you. Bye bye.